ایک خوبصورت سلطنت میں دو شہزادی بہنیں رہتی تھیں۔ شہزادی نور ایک نیک دل لڑکی تھی جو ہر کسی کے لیے دعا کرتی اور ہر کسی کو خوش دیکھ کر خوش ہوتی، جبکہ اس کی بہن شہزادی سحر نور سے بہت حسد کرتی تھی۔ سحر کسی کی خوشی برداشت نہیں کر پاتی تھی اور اکثر دوسروں کے لیے بد دعائیں مانگتی تھی۔ ہر سال کرسمس پر شہزادی نور دل سے سب کے لیے نیک دعائیں مانگتی۔ شہزادی سحر اپنی بہن اور ملازموں کے لیے بد دعائیں مانگتی تھی۔ کبھی چاہتی کہ بہن کا پیر ٹوٹ جائے، کبھی چاہتی کہ دوست یا ملازم کوئی مشکل میں پھنس جائے۔ خود کے لیے کچھ نہیں مانگتی تھی، مگر دوسروں کے لیے برا چاہتی تھی۔ محل میں رہنے والا ہر شخص ان دونوں کے فرق کو محسوس کرتا تھا، مگر کسی کو یہ معلوم نہ تھا کہ آنے والا کرسمس ان کی تقدیروں کا رخ بدل دے گا۔ برف سے ڈھکی پہاڑیوں کے درمیان ایک شاندار سلطنت آباد تھی۔ دور دور تک یہ سلطنت امن، خوشحالی اور نظم و ضبط کی مثال سمجھی جاتی تھی۔ لوگ اپنے بادشاہ اور ملکہ سے محبت کرتے تھے کیونکہ وہ رحم دل اور انصاف پسند تھے۔ اسی محل میں دو شہزادیاں پیدا ہوئیں۔ دونوں ایک ہی دن ایک ہی گھڑی دنیا میں آئیں، مگر وقت کے ساتھ ساتھ یہ بات واضح ہو گئی کہ قدرت نے ان کے دل ایک جیسے نہیں بنائے تھے۔ ایک کا نام شہزادی نور رکھا گیا۔ وہ بہت چھوٹی عمر سے ہی نرم دل تھی۔ اگر کوئی بچہ گرتا تو سب سے پہلے نور دوڑ کر اس کے پاس جاتی۔ اگر کوئی ملازم تھکا ہوا دکھائی دیتا تو وہ معصومیت سے اس کے لیے پانی یا پھل لے آتی۔ اس کے ہونٹوں پر اکثر دعا کے الفاظ ہوتے۔ دوسری شہزادی شہزادی سحر تھی۔ وہ خاموش، ضدی اور اندر ہی اندر جلنے والی بچی تھی۔ جب وہ دیکھتی کہ سب نور کی تعریف کر رہے ہیں تو اس کے دل میں ایک انجانی سی آگ بھڑک اٹھتی۔ وہ کسی کو ہنستا دیکھ کر خوش نہیں ہوتی تھی، بلکہ اس کے چہرے پر ناگواری آ جاتی تھی۔ اس سلطنت میں کرسمس بہت خاص تہوار تھا۔ پورا محل روشنیوں سے سجا ہوتا، درختوں پر رنگ برنگی گھنٹیاں اور ستارے لگائے جاتے۔ بچے خوشی سے تحفوں کا انتظار کرتے اور ہر کوئی دل میں کوئی نہ کوئی خواہش ضرور رکھتا۔ کرسمس کی رات شہزادی نور ہمیشہ آسمان کی طرف دیکھتی اور دل ہی دل میں دعائیں مانگتی۔ کاش اس سال کسی کا دل نہ ٹوٹے، کاش بیمار لوگ ٹھیک ہو جائیں، کاش سب کو محبت نصیب ہو۔ وہ اپنے لیے کبھی خاص کچھ نہیں مانگتی تھی، اس کی خوشی دوسروں کی خوشی میں تھی۔ مگر شہزادی سحر کے دل میں خواہشات کا رنگ بالکل مختلف تھا۔ وہ کرسمس کی رات اکثر غصے میں رہتی۔ اگر اس نے دیکھا کہ کسی ملازم کو نور نے مسکرا کر بات کی ہے تو وہ فوراً دل میں کہتی، کاش یہ ملازم بیمار پڑ جائے۔ اگر اس نے نور کو ہنستے دیکھا تو سوچتی، کاش اس کا پیر ٹوٹ جائے تاکہ یہ مسکرانا بند ہو۔ وہ اپنے لیے کبھی کچھ نہیں مانگتی تھی، مگر دوسروں کے لیے برا چاہنا اس کی عادت بن چکی تھی۔ محل کے ملازم شہزادی نور کے لیے دل سے محبت رکھتے تھے۔ وہ انہیں نام لے کر بلاتی، ان کی خیریت پوچھتی اور اگر کوئی چھوٹی سی غلطی کر بیٹھتا تو مسکرا کر معاف کر دیتی۔ کوئی بات نہیں، دوبارہ خیال رکھنا۔ شہزادی سحر کا رویہ بالکل مختلف تھا۔ معمولی سی تاخیر پر بھی وہ چیختی، کسی کام میں کمی دیکھ کر ملازموں کو سخت لہجے میں ڈانٹتی۔ ملازم اس کے سامنے ڈرتے تھے، مگر اس کی طاقت اور حیثیت کی وجہ سے وہ خاموش رہتے۔ ایک دن محل کے باغ میں دونوں بہنیں کھیل رہی تھیں۔ نور نے دیکھا کہ ایک چھوٹا بچہ درخت سے گر گیا اور رونے لگا۔ وہ فوراً اس کے پاس گئی، اس کے زخم کو سہلایا اور کہنے لگی، کوئی بات نہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا، آؤ میرے ساتھ کھیلو۔ نور کی یہ حرکت محل کے ملازمین اور دیگر بچوں کے لیے بھی ایک مثال تھی۔ وہ ہمیشہ دوسروں کی مدد کرتی، ان کے دکھ کو محسوس کرتی اور دل سے دعا کرتی کہ سب خوش رہیں۔ ہر سال کرسمس کی رات سینٹا دنیا بھر میں بچوں کی دعائیں اور خواہشات سنتا۔ وہ نیک دعاؤں پر مسکراتا اور انہیں پورا کرنے کی کوشش کرتا۔ جب شہزادی نور کی دعائیں اس تک پہنچتیں تو وہ دل سے خوش ہوتا۔ یہ بچی واقعی ایک صاف دل رکھتی ہے۔ مگر جیسے ہی سحر کی بد دعائیں اس کے کانوں تک پہنچتیں وہ چونک جاتا۔ یہ کیسی خواہشیں ہیں؟ سینٹا کبھی بد دعائیں پوری نہیں کرتا تھا، مگر ہر سال ایک ہی دل سے نکلنے والی نفرت اسے فکر مند کر دیتی۔ سینٹا اب جان چکا تھا کہ اگر سحر کا دل بدلا نہ گیا تو آنے والے وقت میں بہت برا ہو سکتا ہے، اور یہی وہ لمحہ تھا جب تقدیر نے خاموشی سے اگلا قدم اٹھانے کی تیاری شروع کی۔ کرسمس کی رات کا آخری پہر تھا۔ آسمان پر ستارے خاموشی سے ٹمٹما رہے تھے اور دنیا بھر میں بچے سو چکے تھے، مگر برفانی شمال میں جہاں وقت عام دنیا سے ذرا مختلف بہتا تھا، سینٹا اپنی وسیع اور روشن ورکشاپ میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے سامنے ایک جادوئی کتاب کھلی ہوئی تھی جس میں بچوں کی دعائیں اور خواہشات خود بخود درج ہو جاتی تھیں۔ سینٹا اس کتاب کے اوراق پلٹ رہا تھا۔
ज़्यादातर सफ़ों पर खुशी, उम्मीद और मासूम ख्वाहिशें लिखी थीं, मगर एक नाम ऐसा था जो हर साल उसे रोक लेता था, शहज़ादी सहर। सैंटा ने गहरी सांस ली। ये बच्ची, उसने आहिस्ता से कहा, ये कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगती, मगर दूसरों के लिए हमेशा बुरा क्यों चाहती है? उसे शहज़ादी नूर की दुआएं भी याद थीं। वो हर साल दूसरों के लिए खुशी, शिफा और मोहब्बत मांगती थी। नूर की दुआएं सैंटा के दिल को सुकून देती थीं, मगर सहर की बद्दुआएं उसे बेचैन कर देती थीं। वो जानता था कि वो बद्दुआएं कभी पूरी नहीं करता, मगर किसी बच्चे के दिल में पलने वाली नफरत उसे हर साल उदास कर देती थी। इसी लम्हे सैंटा ने अपनी छड़ी जमीन पर टिकाई। रोशनी की एक नर्म लहर उठी और चंद लम्हों बाद लाल परी उसके सामने नमूदार हुई। उसके परों पर सुनहरी रोशनी झलक रही थी और उसकी आंखों में दानाई और नरमी थी। आपने मुझे बुलाया सैंटा? लाल परी ने एहतराम से पूछा। सैंटा ने किताब बंद की और कहा, हाँ, एक बहुत अहम जिम्मेदारी तुम्हें सौंपनी है। लाल परी खामोशी से सुनने लगी। सैंटा ने लाल परी को उस सल्तनत के बारे में बताया, उस महल के बारे में और 2 बहनों के बारे में जिनके दिल एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ थे। उसने बताया कि कैसे शहज़ादी नूर बचपन से ही दूसरों के लिए दुआ करती आई है और कैसे सहर हसद और बद्दुआओं की आदत में मुब्तला हो चुकी है। मैं जानता हूँ, सैंटा ने कहा, कि सहर कोई बुरी बच्ची पैदा नहीं हुई थी, मगर उसके दिल में जो आदत बन गई है वो अगर ना बदली गई तो ये उसे और दूसरों को नुकसान पहुँचाएगी। लाल परी ने आहिस्ता से सर हिलाया। और आप चाहते हैं कि मैं उसकी मदद करूं? सैंटा की आंखों में संजीदगी थी। हाँ, अगली क्रिसमस तक मैं चाहता हूं कि सहर की बद्दुआएं खत्म हों और वो पहली बार दिल से कोई अच्छी दुआ करना सीखे। लाल परी ने कुछ लम्हे सोचा। वो जानती थी कि किसी के दिल को बदलना आसान काम नहीं होता, खास तौर पर उस दिल को जो हसद में जकड़ा हो। क्या मैं उसे सजा दूं? लाल परी ने पूछा। सांटा ने फौरन सर हिलाया। नहीं, सजा नहीं, सबक। ऐसा सबक जो उसे खुद अपने अमल का अंजाम दिखाए। वो तकलीफ को समझे, तन्हाई को महसूस करे और दूसरों की कद्र जान सके। लाल परी ने गहरी सांस ली। मैं समझ गई। मैं ऐसा रास्ता चुनूंगी जिससे वो सीखे, टूटे नहीं। सांटा ने मुस्कुराकर कहा, मुझे तुम पर भरोसा है। याद रखना, मकसद उसे डराना नहीं बल्कि बदलना है। सी रात लाल परी ने अपनी जादुई किताब खोली। उसने सहर की जिंदगी के हर पहलू को देखा, उसकी जिद, उसका गुस्सा, उसकी तन्हाई और वो लम्हे जब वो खुद को नज़रअंदाज महसूस करती थी। दिल को बदलने के लिए लाल परी ने खुद से कहा, इसे वो सब महसूस करवाना होगा जो वो दूसरों के लिए चाहती रही है। अगले दिन शहज़ादी सहर अपने घोड़े पर सवार हुई और अकेली जंगल की तरफ निकल गई। वो आहिस्ता आहिस्ता घोड़ा चलाती हुई महल से काफ़ी दूर जा पहुंची। इसी वक्त लाल परी ने अपने जादू से एक शेर बनाया जो अचानक दरख्तों के पीछे से निकला और शहज़ादी सहर के पीछे लग गया। शेर को देखकर सहर घबरा गई और उसने अपने घोड़े को बहुत तेज दौड़ा दिया। घोड़ा जंगल के अंदर बहुत दूर निकल गया। अचानक एक जगह उसका पांव फिसल गया और शहज़ादी सहर घोड़े से गिर पड़ी। वो लुढ़कती हुई पहाड़ी के किनारे से नीचे गई और आखिरकार एक वादी में जा गिरी जहां वो बेहोश हो गई। कुछ देर बाद वहां से गुजरने वाले चंद बोनों ने उसे देखा। उन्होंने शहज़ादी को उठाया और अपने गांव ले गए। वहां उन्होंने उसके पांव में जंजीर बांधी और उसे कैद कर लिया। वो शहज़ादी से गुलामों की तरह काम करवाने लगे। दूसरी तरफ महल में सब लोग बहुत परेशान थे। शहज़ादी नूर दिन रात अपनी बहन को याद करके रोती रहती, मगर शहज़ादी सहर का कोई पता न चल सका। दिन गुजरते गए और बोनों का जुल्म शहज़ादी सहर की जिंदगी का मामूल बन गया। हर सुबह अंधेरा छटने से पहले ही उसे सख्त आवाज़ में जगा दिया जाता। पाँव में बंधी जंजीर खिंचती तो वो दर्द से कराह उठती, मगर कोई सुनने वाला ना था। इसे दूर पहाड़ी चश्मे से भारी मटकों में पानी भरकर लाना पड़ता। रास्ता पथरीला होता, कई बार उसके पाँव फिसलते और चोट लगती, मगर काम रुकता नहीं था। दोपहर तक वो लकड़ियाँ जमा करती, फिर चूल्हे के सामने सब बोनों के लिए खाना बनाती। जलते अंगारों की गर्मी से उसका चेहरा सुर्ख हो जाता, हाथ जलते, मगर अगर जरा सी भी कमी रह जाती तो उसे सख्त डांट सुननी पड़ती। शाम ढलते ही उसके काम खत्म नहीं होते थे। उसे सर्द पानी में कपड़े धोने पड़ते, फिर गंदे बर्तन साफ करने होते और आखिर में झोंपड़ियों की सफाई करनी पड़ती। कभी थकन से हाथ रुक जाते तो बोने चीख पड़ते। उनकी आवाज़ें सुनकर सहर का दिल कांप उठता। हर बार जब उसे डांट पड़ती, उसके जहन में महल के वो मनाजिर ताज़ा हो जाते जब वो खुद मुलाजिमों पर चीखती थी, तुम्हें काम करना नहीं आता, निकम्मे हो तुम सब। अब वही अल्फाज, वही सख्त लहजा इसके कानों में गूंजता तो उसका दिल शर्मिंदगी से भर जाता। एक दिन लकड़ियां उठाते हुए उसके हाथ पर गहरी चोट लग गई, खून बहने लगा। दर्द से उसकी आंखों में आंसू आ गए। इसी लम्हे उसे याद आया कि वो कितनी बार दूसरों के लिए बद्दुआएं मांगती रही थी।
काश उसका पैर टूट जाए, काश उसे चोट लगे। उसका दिल जोर से धड़क उठा। मैं कैसी थी, उसने खुद से कहा। उसे पहली बार एहसास हुआ कि बद्दुआ का दर्द कैसा होता है। रात को जमीन पर बैठी जंजीर के साथ वो खामोशी से रोती रही। अब उसे अपना महल, नरम बिस्तर, माँ बाप और सबसे बढ़कर शहजादी नूर शिद्दत से याद आने लगी। वही नूर जिसके लिए वो हमेशा हसद रखती थी, मगर जो कभी उसके लिए बुरा नहीं चाहती थी। इसी तन्हाई में सहर के दिल में एक नई चीज ने जन्म लिया, शर्मिंदगी और पछतावा, और यही एहसास उसकी तकदीर बदलने वाला था। वक्त ने शहजादी सहर को बहुत बदल दिया था। वही सहर जिसके दिल में कभी हसद और नफरत भरी रहती थी, बोनों के जुल्म, तन्हाई और मेहनत ने उसके गुरूर और नफरत को खत्म कर दिया था। एक बार फिर क्रिसमस की रात आ पहुंची। सर्द हवा चल रही थी, आसमान पर सितारे चमक रहे थे। बोने जश्न में मसरूफ थे, मगर सहर एक कोने में बैठी हुई थी। पाँव में जंजीर थी, हाथों पर जख्मों के निशान और आंखों में आंसू। इस रात उसने दिल खोल कर रोया। उसने आसमान की तरफ देखा और कांपती आवाज में दुआ मांगी। मुझे मेरे घर वालों से मिला दो, मुझे मेरी बहन नूर के पास वापस भेज दो, और अगर हो सके तो मुझे मेरी पुरानी बद्दुआओं पर माफ़ कर दो। मैंने जिनके लिए बुरा चाहा, जिन्हें मैंने दुख दिया, मुझे उस पर शर्मिंदगी है। ये दुआ ना हसद से भरी थी ना नफरत से, ये एक बदले हुए दिल की सच्ची फरियाद थी। इसी लम्हे आसमान में एक नर्म रोशनी फैली। सांता ने वो दुआ सुन ली थी, उसके चेहरे पर इत्मीनान की मुस्कुराहट आ गई। आखिरकार इस दिल ने सच्चाई से मांगना सीख लिया, उसने कहा। अचानक जंजीर टूट गई। एक गर्म रोशनी ने सहर को घेर लिया। आंख झपकते ही सब कुछ बदल गया। जब उसने आंखें खोलीं तो वो अपने महल के सहन में खड़ी थी। इर्द गिर्द चिराग चल रहे थे, क्रिसमस की रोशनियां जगमगा रही थीं। सामने से शहजादी नूर दौड़ती हुई आई और सहर को गले लगा लिया। तुम वापस आ गई हो, नूर की आवाज़ आंसुओं में डूबी हुई थी। सहर रो पड़ी। मुझे माफ़ कर दो नूर, मैं बहुत बुरी थी, उसने कहा। नूर ने मुस्कुराकर उसे मजबूती से थाम लिया। अब सब ठीक हो गया है, उसने नरमी से कहा। इस दिन के बाद शहजादी सहर बदल चुकी थी। अब वो किसी के लिए बद्दुआ नहीं मांगती थी, वो मुलाजिमों से नरमी से बात करती, दूसरों की खुशी में खुश होना सीख चुकी थी। और यूं इस क्रिसमस पर नफरत ने हार मान ली और नेकी ने जीत हासिल कर ली। हमें कभी भी किसी के लिए बद्दुआ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो हम दूसरों के लिए सोचते हैं वही किसी न किसी सूरत में हमारे सामने आ जाता है। हमेशा नेक दुआ और अच्छा सोचना दिल को भी सुकून देता है और ज़िंदगी को भी खूबसूरत बनाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें मज़ीद खूबसूरत और दिलचस्प कहानियाँ बनाने का हौसला मिलता है। जल्द ही एक नई कहानी के साथ दोबारा मुलाकात होगी।